Hello everyone. Today I will explain about terpenoids and carotenoids. These carotenoids is also known as tetraterpenoids, and these terpenoids are related with the main natural product that is called terpenes. So the term terpenes originated from turpentine. Turpentine is also called resin of pine trees. Turpentine is the viscous, pleasantly smelling balsam which flows upon cutting or carving the bark and the new wood of several pine tree species. Turpentine contains the resin acids and some hydrocarbons which were originally referred to as terpenes. Traditionally, all natural compounds built up from isoprene subunits are denoted as terpenes. एक्चुअली टर्पीन्स का जो ओरिजिनेशन हुआ है वो टर्पेंटाइन से हुआ है। टर्पेंटाइन को ही टर्पीन्स कहा जाता है और टर्पेंटाइन एक टाइप का रेजिन होता है जो पाइन ट्रीज से प्राप्त किया जाता है। टर्पेंटाइन इज़ यह एक तरह का विस्कस बहुत ही सुगंधित स्मेलिंग बाल्सम होता है, रेजिन होता है। और जब किसी पाइन ट्रीज के में जब आप कट मार दिया जाता है, उसके बार्क्स को जब एक तरह से हटा दिया जाता है तो एक फ्लूइड वहाँ से जो है फ्लो करता है और इसी फ्लूइड्स को ही रेजिन एसिड्स कहते हैं या रेजिन्स कहते हैं। और नेचुरल प्रोडक्ट्स में बहुत सारे ऐसे टर्पीन्स हैं जो आइसोप्रीन यूनिट्स सब यूनिट से बने हुए होते हैं और इसी आइसोप्रीन सब यूनिट्स के बने होने के कारण सभी टर्पेंटाइन को ही टर्पीन्स कहा जाता है। उनमें आइसोप्रीन यूनिट का प्रेजेंट होना कंपलसरी होता है। कॉनिफर वुड बाउंड ट्रीज, साइट्रस फ्रूट्स, कोरिएंडर, यूकेलिप्टस, लेवेंडर, लेमन ग्रास, लिलीज, पिपरमिंट स्पीसीज, rose, rosemary, thyme and many other plants are parts of those roots, rhizome, stems, leaves, blossoms, fruits, seeds are well known to smell pleasantly, to tasty, spicy or to exhibit specific pharmacological activities. These terpenes predominantly shape these properties. So, the biological and ecological function of terpenes have not yet fully investigated. Many plants produce volatile terpenes in order to attract specific insects for pollination or otherwise to expel certain animals, using these plants as food. Less volatile but strongly bitter tasting are toxic. So, about 30,000 terpenes are known till this date, and their basic structure follows a general principle. What is this general principle? The general principle is they have the isoprene units somewhat C5N. This is the 2-methyl-butane residue that is denoted by C5N. Built up the carbon skeleton of terpenes. This is known as isoprene rule, given by Rosica and Valla. Thus, according to the isoprene rule, all terpenes are built up from C5 isoprene units. Therefore, terpenes are also denoted as terpenoids. In nature, terpenes occurs predominantly as hydrocarbons, alcohol and their glycosides. Ether, aldehydes, ketones, carboxylic acids and esters. Substituted terpenes hydrocarbons are also known as terpenoids. Depending on the number of 2-methyl-butane isoprene subunits, one differentiate between hemi, mono, sesqui, di, sester, tri, tetra and polyterpenes with greater number of N is greater than 8. This isopropyl part of 2-methyl-butane is defined as the head and the ethyl residue is the tail. In monosesquidiene and
Cis terpenes, the isoprene units are linked to each other from head to tail. Tri and tetrapenes contain one tail to tail connection in the center. This is known as special isoprene unit. So this one is the basic part of terpenoids. एक्चुअली ये जो टर्पेनॉइड और कैरोटेनॉइड्स है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक तरह का नेचुरल प्रोडक्ट है, नेचुरल कंपाउंड्स है जो सभी तरह के नेचुरल प्रोडक्ट में प्रेजेंट होता है। इसमें हमने बहुत सारे आपको मोनो, सिस्को, नेचर सब जो है आपको इसमें पढ़ाया था। तो इसी क्रम में इसी फ्लोज को आगे बढ़ाते हुए हम जो है आज कुछ स्टेरॉयड के बारे में एक्सप्लेन करेंगे। चूँकि इसे हमें रिवाइज करना इसलिए अत्यंत आवश्यक था कि मेनली जो है जो स्टेरॉयड का फॉर्मेशन, जो एल्कलॉइड्स का फॉर्मेशन या जो टर्पेनॉइड्स का फॉर्मेशन है, तो ये सारी जो है एक नेचुरल प्रोडक्ट कंपाउंड हैं जो एक रूल पर डिपेंडेबल होते हैं। यानी इसमें एक जो यूनिट होती है, तो जैसे टर्पेनॉइड में आइसोप्रीन यूनिट प्रेजेंट होती है जो अभी हमने आपको बताया, जो हेमी, मोनो, सेस्पी और सिस्टर, ट्राई इन सब में प्रेजेंट होता है। उसी तरह से जो स्टेरॉयड होता है, स्टेरॉयड में जनरली क्या होता है कि इसमें डील्स हाइड्रोकार्बन एक यूनिट होती है, वो प्रेजेंट होता है। ये डील्स हाइड्रोकार्बन रूल पर अवेलेबल होता है, यानी इसमें डील्स हाइड्रोकार्बन कार्बन रूल जो है फॉलो किया जाता है। जैसे एक हमारा इसका जो इनिशियल प्रोडक्ट है कोलेस्ट्रॉल, दिस इज़ वन टाइप ऑफ स्टेरॉयड, दिस इज़ आल्सो प्रेजेंट इन ऑल टाइप ऑफ plant kingdom, that is the as well as animal kingdom both. So the characteristics of steroid, that is steroid alcohol of higher animal, especially present in brain and nerve tissues and human gallstones. So I will discuss about the steroids in details now. तो स्टेरॉइड्स जो होते हैं, स्टेरॉइड्स में बी डिफाइंड एज कंपाउंड्स विच yield डील्स हाइड्रोकार्बन एज वन ऑफ द प्रोडक्ट्स when distilled with selenium at 360 degree centigrade. They comprise a vast group of structurally related compounds widely distributed in the animal and plant kingdoms. Cholesterol C27 compound is the major characteristics steroid alcohols of higher animals, especially present in brain and nerve tissues and human gallstones. The basic skeleton of steroids consists of 17 carbon atoms arranged in the form of per-hydro-1,2-cyclopentadienophenanthine. This is one of the deals hydrocarbon that is called per-hydro-1,2-cyclopentadienophenanthine. 4 rings are designated with capital letters A, B, C and D. Here you see that. While carbon atoms are numbered as shown here, they are numbered by 1, 2, 3 and 4. They will started from here is from left to right, and these 17 carbon atoms are arranged in the following manner. They include compounds with wide variations in structure of and encompass a variety of compounds of vital importance to life, such cholesterol, the bile acids, vitamin D, sex hormones, corticoid hormones, cordia, glycans and antibiotics, etc. Because of their academic as well as pharmacological importance,
A staggering number of steroids have been prepared in laboratory in addition to naturally occurring ones. So एक तरह से देखा जाए तो जो स्टेरॉइड्स है बहुत ही इम्पॉर्टेंट नेचुरल प्रोडक्ट्स है जो प्लांट किंगडम या एनिमल किंगडम दोनों में अवेलेबल होता है। तो जो इसकी सिंथेसिस होती है, अगर एक तरह से देखा जाए, इसकी जो बायोसिंथेसिस होती है, जैसे एक मॉलिक्यूल हम देखें कोलेस्ट्रॉल का, जैसे स्टेरॉइड का, जैसे कोलेस्ट्रॉल, तो इसकी जो सिंथेसिस होती है, दीज आर सिंथेसाइज्ड दैट इज फ्रॉम animals and plants in both the cases. This cholesterol is the most common steroid found in animals, whereas beta cetosterol is the most common steroid found in plants. ये जो दो सबसे कॉमन स्टेरॉइड हैं कोलेस्ट्रॉल से जो एनिमल और प्लांट में पाए जाते हैं, ये स्पेशली क्या है, एक तो कोलेस्ट्रॉल है जो एनिमल में पाया जाता है और दूसरा है बीटा सीटोस्टेरॉल है जो प्लांट किंगडम में पाया जाता है। तो जो बायोसिंथेटिक कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो स्पेशली इनका जो प्रिपरेशन होता है, दे आर आइसोटोपिकली लेबल्ड स्टेरिक एसिड्स। दिस एक्सपेरिमेंट शोज दैट द डॉटेड कार्बन एटम्स आर डिराइव्ड फ्रॉम मिथाइल ग्रुप्स ऑफ द एसिटिक एसिड। सो evidences, there are so many evidences in the favor of synthesis of cholesterol. Initially, if I will explain about some characteristics of and the synthesis of biosynthesis of cholesterol in a sequence. So this is synthesized from mevalonic acid. This is mevalonic acid minus malonic acid, और ये मेलोनिक एसिड सबसे पहले ये कन्वर्ट होती है जीरेनिल पायरोफॉस्फेट में, और जीरेनिल पायरोफॉस्फेट प्री स्क्वेलिन अल्कोहल में कन्वर्ट होता है। फिर प्री स्क्वेलिन अल्कोहल का सिंथेसाइजेशन होता है स्क्वेलिन में, और स्क्वेलिन से लैनोस्टेरॉल बनता है, और लैनोस्टेरॉल फिर फाइनली जाके कन्वर्ट होता है कोलेस्ट्रॉल में। तो इस तरह से कोलेस्ट्रॉल का सिंथेसाइजेशन होता है। लेकिन सबसे पहले कोलेस्ट्रॉल के सिंथेसाइजेशन को देखने के पहले हम देखेंगे कि जो डील हाइड्रोकार्बन है ये किस तरह से सिंथेसाइज्ड होता है और इसका क्या यूज़ होता है कोलेस्ट्रॉल में। ये जो यूनिट होती है, जैसे टर्पेनाइड और कैरोटेनॉइड्स में हमने बताया कि आइसोप्रीन यूनिट प्रेजेंट होती है, तो इसमें डील हाइड्रोकार्बन यूनिट प्रेजेंट होती है। एक तरह से कि जो भी कोलेस्ट्रॉल होगा, अगर उसका एक तरह से रिएक्शंस कराया जाए तो एक प्रोडक्ट उसमें डील्स हाइड्रोकार्बन का जरूर बनेगा। सो नाउ आई विल डिस्कस अबाउट द डील्स हाइड्रोकार्बन। 3-methyl 1,2-cyclopentanophenothrin having the melting point 126 to 127 degree centigrade is known as Diels hydrocarbon. This is one of the most important type of hydrocarbon. It was first obtained when cholesterol was distilled with selenium at 360 degree centigrade. जब कोलेस्ट्रॉल को सेलेनियम के प्रेजेंस में 360 डिग्री सेंटीग्रेड पर हीट किया जाता है तो ये डील्स हाइड्रोकार्बन का फॉर्मेशन होता है। सो सेवरल अदर प्रोडक्ट्स आर आल्सो फॉर्म among which Crysine is most important. It was later found that all steroids give Diels hydrocarbon on distillation with selenium at 360. तो ये क्राइसिन का फॉर्मेशन हो एज ए बाई प्रोडक्ट हो ना हो, लेकिन यहाँ जो डील्स हाइड्रोकार्बन का फॉर्मेशन वो मस्ट होता है। तो यहाँ आप रिएक्शंस देख सकते हैं कि स्टेरॉइड को सेलेनियम के प्रेजेंस में 360 डिग्री सेंटीग्रेड पर हीट किया गया है। तो यहाँ पर 3-methyl 1,2-cyclopentadienophenothrene का फॉर्मेशन हुआ है जिसे हम डील्स हाइड्रोकार्बन कहते हैं, और एक बाई प्रोडक्ट हमारा क्राइसिन का फॉर्मेशन होता है। तो जिसमें आप देख सकते हैं कि 3 बेंजीन न्यूक्लियस और एक साइक्लोपेंटेन न्यूक्लियस जो है आपस में फ्यूज होता है बेंजीन से आर्थो पोजीशन पे। सो दिस स्ट्रक्चर ऑफ डील्स हाइड्रोकार्बन वाज कन्फर्म्ड बाय इट्स सिंथेसिस। How this is confirmed? There are so variety of synthesis which is given in the favor of Diels hydrocarbon.
कि फ्रॉम इट वाज ऑब्टेन्ड, जिससे ये बनाया गया है, तो उसके फेवर में बहुत सारे सिंथेसिस दिए गए हैं। जैसे देखिए कि डियोक्स हाइड्रोकार्बन का जो जनरल प्रिपरेशंस है वो 2,1-नेफ्थिल इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से किया गया है, यहाँ आप देख सकते हैं। और जब इस नेफ्थिल इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड का ट्रीटमेंट अमोनियम क्लोराइड और अंडर हाइड्रोलिसिस के थ्रू किया जाता है डाईमिथाइल पेंटेनोन के साथ, तो एक जो है यहाँ पर एडिशन प्रोडक्ट, यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है रिंग का, कार्बोनिल ग्रुप है, यहाँ पर CH2 माइनस ये अटैक करता है। यानी इसको कुछ अगर इस तरह से दिखाया जाए, ये होता है माइनस, ये होता है प्लस, ये माइनस यहाँ अटैक करेगा इस कार्बन पर, ये बॉन्ड फर्दर डिलोकलाइज होगा और ये MgBr O से जुड़ जाता है। और ये रिंग जो है CH2 से, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये CH2 से जुड़ गई है। और फिर OMgBr अंडर हाइड्रोलिसिस होता है, तो यहाँ पर एल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। तो ये सिंपल रिएक्शन है कि ग्रिग्नॉड रिएजेंट जब कार्बोनिल ग्रुप से रिएक्शन करता है तो एल्कोहल का फॉर्मेशन करता है। और पुनः फिर यहाँ आप देख सकते हैं कि अंडर डिहाइड्रेशन, यहाँ पर डिहाइड्रेशन हो जाता है और डिहाइड्रेशन के थ्रू एल्कीन का फॉर्मेशन होता है। और डिहाइड्रेशन में एक्चुअली ये जो हाइड्रोजन एटम है इस CH3 के पास, ये बॉन्ड यहाँ जाता है, यहाँ से OH निकल जाता है और यह बन जाता है डबल बॉन्ड। आप देख सकते हैं यहाँ डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया है। और फाइनली दिस अंडरगोज रीअरेंजमेंट, ये डबल बॉन्ड आपका यहाँ आता है, फिर पुनः साइक्लाइजेशन क्रिएट करता है और इस तरह से आप देख सकते हैं 4 मेंबर रिंग कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, जो सेलेनियम के प्रेजेंस में डिस्टिल्ड होता है, डिस्टिलेशन किया जाता है और डिल्स हाइड्रोकार्बन का फॉर्मेशन करता है। तो दिस ऑल दिस सिंथेसिस प्रूव दैट द कोलेस्ट्रॉल मस्ट रिलीज्ड one molecule of Diels hydrocarbon. So now comes on the next topic. This is the cholesterol, which is one of the most important type of steroids which are present in the both in plant and animal, both the kingdoms. In animals it is found in the form of cholesterol, but in case of animal cell it is found beta cestoidol. So cholesterol C27H46O is an optically active alpha D 390 degrees का जो स्पेसिफिक रोटेशन होता है वो 39 डिग्री होता है. वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड having the melting point 149 degree centigrade. It occurs free as fatty ester in all animal cells. It was first isolated from human gallstone. The main source of cholesterol are fish liver oil, the brain and spinal cords of cattle. The structure of cholesterol was established after a great deal of work by some prominent groups, especially Willand, Windus and co-workers. So now come on the structural determination. There are so many features or characters which are related with the structural determination of cholesterol. In this sequence, first of all, I will discuss about the structural determination of cholesterol. To understand how the structure of cholesterol was elucidated, it is important to mention the structure in beginning of discussion. Cholesterol consists of nucleus and side chain. cholesterol में दो चीज़ें पाई जाती है, एक न्यूक्लियस पाया जाता है, दूसरा साइड चेन पाया जाता है. आप देख सकते हैं कि इसमें जो रिंग है A, B, C और D, जिसे डिनोट किया गया है A, B, C, D से, तो ये जो A, B, C, D रिंग है और D में आप देख सकते हैं कि जो वेज बॉन्ड 20 जो शो कर रहा है, जिसमें मिथाइल ग्रुप जो जुड़ा हुआ है, ये पूरा डील हाइड्रोकार्बन में ये न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है.
और फिर वहाँ साइड चेन में वहीं C17 से आप देख सकते हैं वहाँ एक साइड चेन जुड़ जाता है 20, 21, 22, 23 एंड अप टू 27. So the cholesterol consists of nucleus and sides. It consists 4 fused ring designated by A, B, C and D beginning from the 6-membered ring on the left. It also contains 2 angular methyl groups, one at C10 and other at C13. You have seen that this one are the C10 and C13. This is both methyl group which is represented by base bond. नंबरिंग shown for कोलेस्ट्रॉल इज यूज्ड इन ऑल द स्ट्रैट्स. तो इस तरह से इसमें नंबरिंग क्रिएट कराया जाता है 1, 2, 3. एक हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट होता है इसमें क्योंकि इसका फार्मूला C27H46O है तो ऑक्सीजन एक अवेलेबल होगा और इस तरह से यहाँ फॉर्मेशन हो जाता है. ये स्ट्रक्चर्स इलूसिडेशंस जो है कोलेस्ट्रॉल में ये 4 मेन हेड्स में डिवाइड किए गए हैं. पहला हेड होता है स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस, दूसरा हेड होता है कि पोजीशन ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप एंड डबल बॉन्ड. 2 चीज़ें इसमें इंक्लूड हुई. तीसरी चीज़ होती है कि नेचर एंड पोजीशन ऑफ साइड चेन क्या होता है कोलेस्ट्रॉल में. चौथा होता है कि पोजीशन ऑफ 2 एंगुलर मेथाइल ग्रुप्स जो C10 C13 पर हैं इनका पोजीशंस क्या होता है. इन सारी चीज़ों को अगर एक साथ कंबाइन कर दिया जाए तो हमें स्ट्रक्चरल डिटर्मिनेशन कंफर्म हो जाता है कि इस तरह से जो है स्ट्रक्चर कोलेस्ट्रॉल का होगा. सो नाउ आई विल कम ऑन द फर्स्ट characters, that is the structure of nucleus. So molecular formula of cholesterol was determined to be C27H46O. Here you see that C27 and H46O. It forms an acetate when acylated, confirming the presence of hydroxyl group. इसका मतलब जब इसका एसिटाइलेशन किया जाता है तो एसीटेट का फॉर्मेशन होता है और जहाँ भी एसीटेट का फॉर्मेशन होगा क्योंकि एसिड से रिएक्शन कराया जाएगा तो एसीटेट का एस्टर का फॉर्मेशन होगा और एसिड एस्टर तभी बनाएगा जब उसमें एल्कोहल प्रेजेंट यानी एल्कोहलिक ग्रुप प्रेजेंट होता है. तो इसका मतलब ये है कि इसमें एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो प्रेजेंट होता है. मोरेवर इट एड्स एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट एंड आल्सो फॉर्म्स a डाइब्रोमाइड डेरिवेटिव when treated with bromine, confirming the presence of a double bond. और दूसरा इसका रिएक्शंस होता है कि जब इसमें कैटालिटिक रिडक्शन कराया जाता है तो डाइब्रोमाइड का फॉर्मेशन करता है. तो इसका मतलब इसमें एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है क्योंकि एक डबल बॉन्ड 2 सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है आफ्टर ब्रेकिंग. तो इसका मतलब जब 2 ब्रोमीन ऐड होते हैं इस कोलेस्ट्रॉल रिंग में तो जो ये कंफर्म करता है कि इसमें एक डबल बॉन्ड अवेलेबल होता है. Hydrogenation of cholesterol followed by oxidation with chromium trioxide yielded cholesterol, a ketone which when subjected to Clemenza reduction give a saturated hydrocarbon. यानी कोलेस्ट्रॉल जो है ये इसका जब ऑक्सीडेशन कराया जाता है क्रोमिक ऑक्साइड के प्रेजेंस में तो ये कोलेस्टेनोन का फॉर्मेशन करता है, कार्बोनिक कंपाउंड यानी कीटोन का फॉर्मेशन करता है. और ये कोलेस्टेनोन क्लेमेंजन रिडक्शंस के थ्रू कोलेस्टीन में कन्वर्ट हो जाता है जो कि एक हाइड्रोकार्बन है यानी एक एल्केन हाइड्रोकार्बन है. तो ये जो क्लेमेंजन रिडक्शन होता है, क्लेमेंजन रिडक्शन इज सच टाइप ऑफ रिडक्शन इन विच कार्बोनिल ग्रुप इज कन्वर्टेड इनटू एन एल्केन बाय मींस ऑफ जिंक अमलगम एंड HCl. जिंक अमलगम और HCl के प्रेजेंस में कार्बोनिल कंपाउंड सच एज एल्डिहाइड एंड कीटोन is generally converted into an alkane. So here cholestenone is also converted by means of zinc amalgam into cholestane. This is one type of hydrocarbon. So here you see that the reaction of cholesterol which is given below, that is the cholesterol first of all under hydrogenation with platinum, this is converted into cholestanol, and this cholestanol under chromic oxide undergoes oxidation to form cholestanone. This is one type of ketone which further reduced in an alkane by means of zinc amalgam and
hydrochloric acid. This is one type of Clemmensen adduction. So the nature of ring in cholesterol, we can say that the in steroids was investigated by oxidatively opening of various rings to form dicarboxylic acid. The relative position of two carboxylic groups were determined by applying Blank's rule, which states that 1,5-dicarboxylic acid form anhydride on heating with acetic anhydride, while 1,6-dicarboxylic acid with acetic anhydride yields cyclopentanone with the liberation of CO2 and water. तो यहाँ पर ये जो रिंग का फॉर्मेशन होता है कोलेस्ट्रॉल में, वो ब्लैंक्स रूल के अकॉर्डिंग डिटरमाइन किया जाता है कि अगर मान लीजिए 1,5-डाइकार्बोक्सिलिक एसिड्स का फॉर्मेशन है हो रहा है, प्रेजेंट है उसमें, तो जब उसका एसिटिक एनहाइड्राइड के प्रेजेंस में रिएक्शन करा हीट किया जाता है तो एक तरह से एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन करता है। लेकिन अगर वही 1,6 होता है, 1,6 लाइक दिस, तो यहाँ पर कीटोन साइक्लोपेंटेनोन का फॉर्मेशन होता है। तो इस तरह से देखा जाए तो कोलेस्ट्रॉल में रिंग ए अवेलेबल है या रिंग बी अवेलेबल है, यानी जो एनहाइड्राइडिक रिंग है वो अवेलेबल है या फिर जो कार्बोनिल रिंग है वो अवेलेबल है। तो इसके हिसाब से सबसे पहले देखा जाए द रिंग ए, ऑक्सीडेशन ऑफ कोलेस्टेनोन विथ chromium trioxide gave a dicarboxylic acid without any loss of carbon atom, suggesting that carbonyl group is a part of the ring. Heating dicarboxylic acid with AC2O yielded a cyclopentanone derivative with the elimination of CO2, indicating that it is 1,6-dicarboxylic acid. Cholesterol must therefore have a cyclohexanone ring, and so hydroxyl group in cholesterol must be present in 6-membered ring which was designated as ring A. यानी एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्शंस कराने पर वहाँ पर जो जब साइक्लाइजेशन होता है साइक्लिक एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन होता है अंडर द एलिमिनेशन CO2, तो जो ये कंफर्म करता है कि ये जो है 1,6-डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है, क्योंकि 1,6-डाइकार्बोक्सिलिक एसिड में ही CO2 का जो है रिलीजन होता है इन द फॉर्म ऑफ CO2। सो कोलेस्टेनोन का जो फॉर्मेशन होता है ये कंफर्म करता है कि इसमें जो है साइक्लोहेक्सेन रिंग अवेलेबल है। दूसरा है कोलेस्टेनोन, यहाँ आप देख सकते हैं इस कोलेस्टेनोन को, और ये अंडर ऑक्सीडेशन यहाँ फॉर्मेशन करता है 1,6-डाइकार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव, और इसका जब एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्शन करते हैं साइक्लोपेंटेनोन डेरिवेटिव का फॉर्मेशन करता है। तो इससे ये कंफर्म होता है कि इसमें साइक्लोहेक्सेन रिंग अवेलेबल है। नेक्स्ट वन इज द रिंग बी। रिंग बी एक 1,6-डाइकार्बोक्सिलिक एसिड derivative obtained by opening of ring A was converted to 1,4-dicarboxylic acid, which was transformed to a beta-keto-dicarboxylic acid. After a series of reactions, oxidation of beta-keto-dicarboxylic acid with chromic oxide yielded tricarboxylic acid, which when heated with acetic anhydride formed a cyclopentanone ring by the loss of CO2. These results confirm that ring A is fused with another 6-membered ring which was named as B. So here once again here we see that the 1,4-dicarboxylic acid which are under treatment is converted into beta-keto-dicarboxylic acid में ये कन्वर्ट हो जाता है, जिसका ऑक्सीडेशन होने पर यहाँ पर टेट्रा कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन होता है जो अंडर डीकार्बोक्सिलेशन यहाँ फॉर्मेशन करता है एक एन अदर 6-member ring that is given by B ring which is also a 6-member. So the fact that ring B is 6-member was also confirmed by conversion of cholesterol to a tetracarboxylic acid, जो ऊपर आपने देखा, which on heating with last 2 molecules of CO2 and yielded a derivative with 2 cyclopentadiene rings. So
So here cholesterol, several steps which are given, that the first of all it forms the carbonyl cyclohexane compound, which under oxidation to form tetracarboxylic acid, and after tetracarboxylic acid there is formation of cyclopentane ring with carbonyl group. So ring C and D, or these rings, this is in favor of steroid or not. This can further explain that the oxidation studies on cholesterol and related compound indicated that the presence of two 5-member ring in cholesterol, 5-beta cholesterol, was converted to dicarboxylic acid named etiovylenic acid, which yielded an anhydride with C2. Hence, one 5-member ring is also present in cholesterol. इसका मतलब ये हुआ कि जब कोलेस्ट्रॉल का ऑक्सीडेशन कराया जाता है तो ये 5-बीटा कोलेस्टोन डाइकार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, और फिर जिसे इथियोबिलोनिक एसिड भी कहते हैं, विच यील्ड एनहाइड्राइड विथ Ac2O. हेंस इसमें 5-member रिंग जो है वो प्रेजेंट होता है. एक्चुअली दिस वाज रिंग डी विच कंटेंड साइड चेन विच वाज लॉस्ट ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन. तो ये जो है आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये साइड चेन में यहाँ अवेलेबल है. तो इस तरह से देखा जाए तो कोलेस्ट्रॉल का कुछ इस तरह का न्यूक्लियस अवेलेबल होता है. स्ट्रक्चर ऑफ कोलेस्ट्रॉल एंड दियर साइड चेन्स आर गिवन हियर. तो जो 4th रिंग है कोलेस्ट्रॉल का, वो कुड नॉट बी क्लीव्ड, एंड इंफॉर्मेशन अबाउट दिस रिंग वाज ऑब्टेन्ड बाय ऑक्सीडेशन ऑफ डीऑक्सीक्लोरिक एसिड which is a bile acid. It was shown by various transformations that bile acid and cholesterol have same nucleus. So oxidation of deoxycholic acid derivative produced a dicarboxylic acid without elimination of side chain. This dicarboxylic acid give an anhydride with Ac2O, showing that this must be 5-member ring. This ring was designated as ring C. So there are 4 rings was obtained in the form of A, B, C and D, and thus the structure proposed by Wenders and Wieland was rejected because distillation of cholesterol with selenium at 360 degree yielded Diels hydrocarbon, which is cannot be explained by above structure. यानी जो स्ट्रक्चर कन्फर्मेशन ये हुआ, तो इसका जब 1928 में ये जो फिर इस सेलेनियम के प्रेजेंस में इसका रिएक्शन कराया गया, हीट किया गया, तो डील्स हाइड्रोकार्बन का फॉर्मेशन ये रिंग नहीं दिया. तो जिससे ये जो है कंफर्म हो गया कि इसमें जो 1,5 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड्स है उसके थ्रू वो रिंग इसमें अवेलेबल नहीं होगा. इसमें जो अवेलेबल होगा वो होगा एक्चुअली 1,6 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड रिंग जो है इसमें अवेलेबल होगी. तो इन 1932 बाई रोजेनहेम एंड किंग्स एज वेल एज विलेंड एंड कोवर्कर्स, उन्होंने एक्सप्लेन किया कि जो स्टेरॉइड्स हैं उसमें जनरली साइक्लोपेंटेनोफेनेन 3 जो है रिंग प्रेजेंट होता है, जिसे डील्स हाइड्रोकार्बन कहते हैं, वो प्रेजेंट होता है, which was later found to be true by synthesis of cholesterol, जो बाद में कंफर्म कर दिया गया कि हाँ दिस इज ट्रू और ये जो है अवेलेबल होगा. यहाँ आप देख सकते हैं ये डीऑक्सीकोलिक एसिड है, और डीऑक्सीकोलिक एसिड का जब रिएक्शन कराया जाता है और इसका स्टिल एस्टिक एनहाइड्राइड से रिएक्शंस कराते हैं, तो यहाँ आप देख सकते हैं देयर इज फॉर्मेशन ऑफ सेम न्यूक्लियस. जो बाइल्स में पाया जाता है, बाइल एसिड में पाया जाता है उसका, और कोलेस्ट्रॉल का, दोनों में न्यूक्लियस जो है लगभग समान मिलता है. नेक्स्ट वन इज द पोजीशन ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप एंड डबल बॉन्ड. दूसरा इसका जो टॉपिक है वो ये है कि पोजीशन ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप और डबल बॉन्ड. इट हैज़ ऑलरेडी बीन फाउंड दैट हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज प्रेजेंट ऑन ए 6-member ring, must be present on either ring A, B or C, but not D.
Actually, oxidation of cholesterol yielded another 1,6 dicarboxylic acid as a minor product. This can only be explained if CH2CO CH2 group is present in cholesterol. Thus hydroxyl group may be present either C2 or C3 in a ring. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर कोलेस्ट्रॉल का जो है एक बार से रिएक्शन करा दिया जाए तो यहाँ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, और ये डाई कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ जो एक 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 here you see that this is one is the 1 2 3 4 5 1 5 और 1 6 के फॉर्म में जो फॉर्म होता है, तो देखा जाता है कि ये जो CH2CO CH2 ग्रुप है ये कोलेस्ट्रॉल में प्रेजेंट होता है, और ये कंफर्म करता है कि जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा हमारा वो या तो C2 रिंग में होगा या C2 पे होगा या C3 पे होगा. Thus, the position of hydroxyl group at C3 was confirmed by Kohn et al. And treatment of cholesterol with methyl magnesium bromide. Here you see that cholesterol under Grignard reagent treated to form. Here you see that a byproduct which under selenium to yield Diels hydrocarbon. ये जो है Diels hydrocarbon जो है रिलीज करता है. So the position of double bond in cholesterol was established by following sequence of reactions. कि कोलेस्ट्रॉल को जब हाइड्रोजन पेरोक्साइड और CH3CO एसिटिक एसिड के साथ ट्रीट किया गया तो कोलेस्टेनिन ट्रायल का फॉर्मेशन हुआ, कोलेस्टेन ट्राइऑल का, और ये कोलेस्टेन ट्राइऑल अंडर क्रोमिक एसिड कन्वर्टेड इनटू हाइड्रोक्सी कोलेस्टेन डाइओन में कन्वर्ट हो जाता है. Alcohol is converted into ketone, and then further in presence of zinc and acetic acid and water is liberated to form the cholesterol dione, which again treated with chromic oxide to give tetracarboxylic acid. So the hydroxylation of double bond in cholesterol yielded a trihydroxy derivative which produced hydroxy cholesterol dione when oxidized with chromic trioxide, suggesting that two hydroxy groups are secondary while third may be tertiary because it could not be oxidized as already confirmed. So hydroxy group in cholesterol is secondary. Thus one secondary and one tertiary hydroxyl groups are produced by hydroxylation of double bond. So the oxidation of cholesterol dione to tetracarboxylic acid without any loss of carbon atom suggested that both these ketonic groups are cyclic and are not present on the same ring. The presence of both these ketonic groups on the same ring would have produced a dicarboxylic acid with lesser number of carbon atoms. Heating tetracarboxylic acid with the acetic anhydride produced another diketo compound. So the indicating that both the ketonic groups in cholesterol dione are part of 6-member ring. This is not a part of 5-member ring. So the double bond must therefore be present in either ring B or ring C. ये जो है या तो रिंग B में प्रेजेंट होगा या तो फिर रिंग C में प्रेजेंट होगा. तो इस तरह से कोलेस्टेरॉल डाइऑन जो है वो फॉर्म करता है एक पायरिडाइजिन का डेरिवेटिव जो हाइड्रोजीन विच इज़ ओनली पॉसिबल व्हेन 2 कीटो ग्रुप्स आर ऑन गामा पोजीशन. 1,4 डाई कीटो ग्रुप अगर होगा तभी इसमें अवेलेबल हो. जैसे यहाँ रिएक्शन दिखाया गया है, कोलेस्ट्रॉल को जब ट्रीट किया जाता है तो यहाँ पर कोलेस्टेरॉल ट्राइऑल का फॉर्मेशन होता है, फिर क्रोमिक ऑक्साइड के प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं तो हाइड्रोक्सी कोलेस्टेरॉल डाइऑन का फॉर्मेशन होता है, और पुनः जब जिंक एसिटिक एसिड और H2O से रिएक्शंस कराते हैं तो यहाँ कोलेस्टेरॉल डाइऑन का फॉर्मेशन होता है. यहाँ हाइड्रोक्सी डाइऑन था, यहाँ डाइऑन का फॉर्मेशन होता है, और जो पुनः ऑक्सीडाइज्ड होकर के टेट्राकार्बोक्सिलिक एसिड C27H44O8 का फॉर्मेशन करता है.
और यही कोलेस्टेन डाइओन जो है हमारा, जब हाइड्रोजीन से ट्रीटमेंट कराया जाता है तो एक पायरिडाइजिन डेरिवेटिव का फॉर्मेशन करता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और ये जो पायरिडाइजिन डेरिवेटिव है यही ये कन्फर्म करता है कि जब 2 कीटो ग्रुप्स गामा पोजीशन पर अवेलेबल हो 1,4 डाई कीटो के फॉर्म में, सिंस हाइड्रोक्सिल ग्रुप इन कोलेस्ट्रॉल has already been confirmed at C3, the second keto group must be in ring B at C6, which confirms the presence of double bond between C5 and C6। इससे जो है ये कंफर्म होता है कि इसमें जो डबल बॉन्ड होगा C5 या C6 पर अवेलेबल होगा। ये फर्दर प्रूव किया गया, नॉलर प्रूव दैट पायरिडाइजिन डेरिवेटिव इज पॉलीमराइजिंग ऑब्जेक्शंस टू द असाइनमेंट ऑफ डबल बॉन्ड बिटवीन C5 एंड C6। इन्होंने एक ऑब्जेक्शंस क्रिएट किया। फिर यहाँ देखा गया कि कोलेस्ट्रॉल को आप देख सकते हैं कॉपर ऑक्साइड के साथ 290 डिग्री पर जब हीट किया जाता है तो यहाँ कोलेस्टेन डाइओन का फॉर्मेशन होता है, डाइओन। और ये कोलेस्टेन डाइओन अंडर ऑक्सीडेशन कीटो एसिड का फॉर्मेशन कर, देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ कीटो एसिड। So all these evidences in support of assignment of double bond between C5 and C6 was provided by heating cholesterol with copper oxide, and it was confirmed by ultraviolet spectroscopy that cholesterol is a alpha beta unsaturated ketone, but it has been shown that double bond is not present in ring A in cholesterol, which means that the double bond must be between C5 and C6 in cholesterol, which has migrated to C4 and C5. So this is confirmed by this equation. Here you see that all these reactions can be explained very smoothly. Here the cholesterol is converted into cholesterol and keto finally is converted into keto acid. Then there is all these features prove that the cholesterol has such following types of nucleus and the position of hydroxyl group and double bond.